Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ahmed Hassan and I am the Chief Mentor and Program Head for FCPS Part 1 program that is being conducted by MedExam Expert and the StudyMate. This session has been specifically planned so that those people who are trying to figure out a way to basically understand the methodology of FCPS Part 1 exam, prepare for it, and ultimately ace it, inshallah, they need to have a direction. They need to understand which books to follow. They need to understand the depth of the topics they need to go into. Moreover, most of the people who start the preparation for FCPS Part 1 are unaware of the fact that yes, there are multiple books and there are different techniques that you can basically associate with passing this FCPS Part 1 exam. But there is no replacement to the concepts and the basic methodology that you basically adhere to during the preparation. So this basic session has been planned for this specific reason. I have with me Dr. Hamad Ayaz as well, who is one of the founding mentors for FCPS Part 1 program that we started more than a year ago. We actually launched this program during the month of Ramadan, and Alhamdulillah, a whole year will be completing this Ramadan. So let me start first by letting you know about the methodology in which you should prepare. Then I will come to the books that you need to prepare with, and then the whole aspect, the myths that have been circulating around in different Facebook groups on different forums that needs to be busted right now. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि FCPS Part 1 की पूरी preparation is divided into 4 phases. आप जिस मर्जी स्पेशलिटी के लिए अपेयर हो रहे हैं, be it medicine, surgery, radiology, gynae, ENT, eye, dentistry, psychiatry, pathology, जौन सी even community medicine, आप जौन सी मर्जी स्पेशलिटी के लिए अपेयर हो रहे हैं, there is a certain plan that is common for every speciality. मैं कॉमन चीजों से शुरू करूंगा और उसके बाद आगे आगे फेज आउट करता जाऊंगा. सो द फर्स्ट फेज जो मैं आपको बताने लगा हूं, फेज 1, ठीक है, जिसमें आपने थ्योरी करनी होती है, बुक्स करनी होती हैं और साथ एक एमसीक्यू बुक और वन लाइनर बुक करनी होती है. ये सब स्पेशलिटीज के लिए सेम है, कॉमन है. फेज 1 में यू विल स्टार्ट with theory books along with FCPS Mate, that is a one-liner book. Along with that, Rabia Ali, that is an MCQ book that is divided topic wise. ठीक है. अब फेज 1 जिसमें मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूं थ्योरी, इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स आ जाते हैं: एनाटॉमी, ऑर्गन सिस्टम्स एंड माइनर्स. अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अगर मेडिसिन में अपेयर हो रहा हूं तो क्या मेरे लिए एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग पूछते हैं अगर मैं सर्जरी के लिए अपेयर हो रहा हूँ या रेडियोलॉजी के लिए अपेयर हो रहा हूँ, क्या मेरे लिए ऑर्गन सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आप जिस मर्जी स्पेशलिटी के लिए अपेयर हो रहे हैं, ये जो 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपकी, एनाटॉमी, ऑर्गन सिस्टम्स और माइनर्स, ये तीनों के तीनों हर स्पेशलिटी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं. ये आप नहीं कह सकते कि अगर आप एक स्पेशलिटी के लिए अपेयर कर रहे हैं तो दूसरी स्पेशलिटी के लिए शायद वो कम इंपॉर्टेंट होंगे. ये मिथ है, ये चीज गलत है. एनाटॉमी जब आपने शुरू करनी है तो एनाटॉमी में यू विल यूज स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू. स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू बेसिकली छोटी स्नेल कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है. बिग स्नेल इज अ डिफरेंट बुक, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू इज अ डिफरेंट बुक. अबाउट 400 पेजेस की बुक है जो आपने पढ़नी है. स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू पढ़ेंगे, उसके साथ यू विल स्टडी FCPS Mate फर्स्ट एडिशन. दिस इज द बुक FCPS Mate फर्स्ट एडिशन. इसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक वाइज डिवीजन है पास्ट MCQs की इन वन लाइनर फॉर्म, ठीक है.
Snell's Anatomy Review, then FCPS Mate First Edition, and then you will move towards Rabia Ali MCQs. आपने कोई भी रीजन शुरू किया है, अपर लिम शुरू किया है, तो पहले आप स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू और एफसीपीएस मेट करेंगे, उसके बाद आप मूव करेंगे टुवर्ड्स राबिया अली। आपने लोअर लिम शुरू किया है, आप उसमें भी स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू साथ एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन करेंगे, फिर आप मूव करेंगे राबिया अली के एमसीक्यूज की तरफ। आपने थोरेक्स शुरू किया है, उसमें भी इसी तरीके से स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, एफसीपीएस मेट, देन राबिया अली। आपने हेड एंड नेक शुरू किया है, यही ऑर्डर होगा। आपने एब्डोमेन शुरू किया है, यही ऑर्डर होगा। आपने पेल्विस शुरू किया है, यही ऑर्डर होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टडी द थ्योरी दैट इज रिटन इन राबिया अली। यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टडी द एमसीक्यू पॉइंट्स जो वन लाइनर्स लिखे हुए हैं दैट आर इन राबिया अली। आपने राबिया अली में से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही करने हैं, नथिंग एल्स। एनाटॉमी आपने इस तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको बता दी है, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, एफसीपीएस मेट एंड देन राबिया अली एमसीक्यूज। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हेन यू विल गो थ्रू एफसीपीएस मेट, तो उससे आपको क्लैरिटी से पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स वाकई में इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक सीपीएसई टेस्ट करती है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किन चीजों पे आपने स्ट्रेस करना है व्हाइल यू आर रीडिंग फ्रॉम स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू। बाकी कोर्स की डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1 मई से जो अगस्त अटेम्प्ट है उसके लिए कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, उसकी मैं आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन हमारे लेक्चर्स भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं जो कवर कर रहे हैं सारी चीजों को। एनाटॉमी के बारे में एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर समझ लग गई है तो यस लिखें, फिर मैं आगे ऑर्गन सिस्टम्स की तरफ मूव करता हूं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज अभी तक एनाटॉमी के बारे में है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट चीज में मूव करूंगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द ऑर्गन सिस्टम्स। अब ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं उनको किस तरीके से आपने मैनेज करना है। ऑर्गन सिस्टम्स आपके पास जो आ जाते हैं वो हैं ऑब्वियसली सीवीएस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर आ जाता है सीएनएस जो न्यूरो है आपकी, ठीक है, जीआईटी है, नेफ्रोलॉजी है, एंडोक्रिनोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्लड है और मस्कुलोस्केलेटल है। ये आपके 9 ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। इन 9 ऑर्गन सिस्टम्स को आपने किस तरीके से और किस अंदाज से करना है मैं अब आपको वो बताता हूँ। द फर्स्ट थिंग, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बीआरएस फिजियोलॉजी जो है ना, इंडीड इट इज एन इंपॉर्टेंट बुक, इंडीड इट इज अ वेरी गुड बुक, लेकिन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड सर्टेन डेप्थ जिसमें आपने उसमें जाना है। बीआरएस फिजियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपना पूरा टाइम उस पर सर्व कर दें। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सारे का सारा टाइम उस पर लगा दें और आपकी एफसीपीएस मेट छूट रही हो, आपकी राबिया अली छूट रही हो, आपकी फर्स्ट एड छूट रही हो। फर्स्ट एड इज योर बेसिक बुक फॉर ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। करना आपने क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स किस तरीके से करनी है, मैं जहां पे रिकमेंड करूंगा स्टार्ट विद फर्स्ट एड एंड बीआरएस फिजियोलॉजी, लेकिन इन पैरेलल आप साथ साथ एफसीपीएस मेट भी पढ़ते जाएं। एफसीपीएस मेट में हम लोगों ने अलग-अलग डिवाइड की हुई है चीजें, मतलब कि अगर आपने एक टॉपिक शुरू किया है, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली एक निकाल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपने सीवीएस शुरू किया है, तो सीवीएस में आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल पढ़ना शुरू किया, तो आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल पहले
पढ़ लिया CVS फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, जैसे इसमें पीपी कंट्रोल के अलग MCQs वन लाइनर की फॉर्म में दिए हुए हैं। उसके बाद आपने वो चीज पढ़ ली फ्रॉम BRS फिजियोलॉजी, साथ ही आपने वही चीज पढ़ ली फ्रॉम फर्स्ट एड, और आपने इसी तरीके से दूसरा टॉपिक बढ़ा, तीसरा टॉपिक बढ़ा, चौथा टॉपिक बढ़ा, अभी मैं CVS की बात करूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अल्टीमेटली जब आपके इस तरीके से सारे टॉपिक खत्म हो गए फ्रॉम FCPS मेट, फर्स्ट एड एंड BRS फिजियोलॉजी, उसके बाद जो टॉपिक रह जाते हैं, इसका मतलब है अगर वो FCPS मेट में नहीं है, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। उनको आप एक सुपरफिशियल रीड दोगे एंड यू विल स्ट्रेट अवे मूव टूवर्ड्स राबिया अली MCQs। समझ लगी है यहां तक किस तरीके से ऑर्गन सिस्टम्स को अप्रोच करना है। आप CVS भी इसी तरीके से करोगे, फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसी तरीके से करोगे, FCPS मेट अलॉन्ग विद फर्स्ट एड एंड BRS फिजियोलॉजी एंड देन राबिया अली से MCQs। आप GIT भी इसी तरीके से करोगे, FCPS मेट फर्स्ट एडिशन अलॉन्ग विद फर्स्ट एड एंड BRS फिजियोलॉजी एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स राबिया अली MCQs। आप नेफ्रोलॉजी भी इसी तरीके से करोगे, आप एंडोक्रिनोलॉजी भी इसी तरीके से करोगे, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी तरीके से करोगे, ब्लड भी ऐसे ही करोगे, मस्कुलोस्केलेटल भी इसी तरीके से करोगे। इस तरीके से अगर करोगे तो आपकी तैयारी भी स्ट्रीमलाइन रहेगी, आप तैयारी में बोर भी नहीं होगे और आपको एक डायरेक्शन मिली होगी। अगर आप इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम्स नहीं करोगे तो फिर आप भटकते रहोगे, कभी आप BRS फिजियोलॉजी खोल रहे होगे, कभी आप फर्स्ट एड खोल रहे होगे, कभी आप राबिया अली से कुछ पढ़ लोगे, और अल्टीमेटली अब कुछ टॉपिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स वीक हो जाएंगे, और जो कि आपको एंड पे बहुत मुश्किल होगी। इस तरीके से आप सारे ऑर्गन सिस्टम्स करोगे एक्सेप्ट न्यूरो। न्यूरो को करने का अंदाज फर्क है। पहले मैं आपको बाकी ऑर्गन सिस्टम्स का एक्सप्लेन मैंने कर दी है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि the lectures that we provide along with 24/7 discussions on Telegram, they are the core of preparation। हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है 1 मई से, और 3 months इंटेंसिव कोर्स होगा जिसमें हम लोग ऑब्वियसली आपको सारी चीजें करवाएंगे। तो उसमें भी इसी तरीके से लेक्चर्स बने हुए हैं, और उससे आपकी जो है ना लिटरली आपको स्पून फीड की जाती हैं BRS फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड और FCPS मेट। और राबिया अली के MCQs जो मुश्किल लग रहे होते हैं आप लोग पूछते हैं, डिस्कस करते हैं टेलीग्राम पे, और हम आपको हेल्प आउट कर देते हैं उसमें। हमारे मेंटर्स जो हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर ट्रेनिंग। मैं खुद PhD ट्रेनिंग कर रहा हूँ इन होली फैमिली हॉस्पिटल। डॉक्टर हमाद इज करंटली डूइंग PhD ट्रेनिंग इन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसी तरीके से डॉक्टर अली आई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर मोहवैज ENT में ट्रेनिंग कर रहे हैं, and we all are alhamdulillah have passed through this phase, we have cleared the exam and we know what we are doing right now, and we have taught almost 1200 students right now। तो बेसिकली आपने इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम्स करने हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। अगर आप एक मेंटोर की बात मानेंगे देन यू वोंट बी लेड एस्ट्रे। अगर आप कोई एक बंदे की बात सुन ली, कोई दूसरे बंदे की बात सुन ली, और आपने कोशिश की कुछ एक नई चीज करने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली ये होगा कि यू वोंट हैव अ स्ट्रीमलाइंड पाथ एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द थिंग्स इन द लिमिटेड स्पैन, और आप एग्जाम में अपेयर होंगे लेकिन फिर आप ऑब्वियसली इनकम्प्लीट तरीके से अपेयर हो रहे होंगे एंड यू विल बी लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर लक। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि एनाटॉमी किस तरीके से करनी है, स्नेल्स एनाटॉमी, FCPS मेट एंड राबिया अली, ऑर्गन सिस्टम्स CVS, रेस्को, GIT, नेफ्रो, एंडो, रिप्रो, ब्लड, मस्कुलोस्केलेटल किस तरीके से करने हैं, FCPS मेट, BRS, फर्स्ट एड एंड राबिया अली MCQs ही करने हैं। अब CNS में बताने लगा हूं आपको CNS किस तरीके से करना है। CNS आप करोगे फ्रॉम फर्स्ट एड, आपकी प्राइमरी बुक होगी, फर्स्ट एड विल बी योर प्राइमरी बुक। Along with that, you will have Kaplan neuroanatomy। उसको पढ़ना जरूर है, समझना जरूर है, लेकिन टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। इसी तरीके से BRS फिजियोलॉजी में न्यूरोफिजियोलॉजी का सेक्शन है, वो भी आप करोगे, FCPS मेट करोगे, और फिर आप राबिया अली से MCQs करोगे। इसमें एक और डायरेक्शन भी हो सकती है जिससे आप कर सकते हो
यू कैन स्टार्ट विद FCPS मेट, साथ आप फर्स्ट एड, और फिर आप BRS फिजियोलॉजी एंड गैपलान, एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स राबियाली। एक तरीका ये भी है। ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया है, मैं ज़्यादा इस पर स्ट्रेस अपॉन करता हूँ क्योंकि आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो न्यूरो के लेक्चर्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड, और वो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करवा देते हैं। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, 5 to 6 बुक्स हर चीज़ के लिए यूज़ की गई हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से लेक्चर्स बनाए गए हैं। ये नहीं किया हुआ कि हमने टॉपिक कवर टू कवर बढ़ा दिए। सो दैट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स। ठीक है, एनाटमी हो गई, ऑर्गन सिस्टम्स हो गए। इस तरीके से फेज 1 में आपको मैंने बताया थियरी विद FCPS मेट एंड राबियाली। दिस इज द पैटर्न। FCPS मेट पूछ रहे हैं कि एक ही बुक है जिसमें सब क्वेश्चन है। जी जी, FCPS मेट ये एक ही बुक है जिसमें सब क्वेश्चन है। ठीक है, FCPS मेट फर्स्ट एडिशन दैट इज। इसके बाद फेज 1 में एनाटमी हो गई, ऑर्गन सिस्टम्स हो गए। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द माइनर्स। अब माइनर्स जो हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन माइनर्स जितनी ही इंपॉर्टेंस देनी है आपने, अगर आप माइनर्स को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देंगे, देन यू विल बी लीविंग a lot of gap in your other important things like anatomy and organ systems. जनरल पैथोलॉजी के लिए you will do basically BRS पैथोलॉजी। ठीक है, BRS पैथोलॉजी आप करेंगे, और उसके बाद आप सेकंड काम ये करोगे कि साथ आप FCPS मेट फर्स्ट एडिशन करोगे, and ultimately you will move towards Rabiali. All clear? BRS pathology, FCPS mate first edition, and then Rabiali MCQs. इसी ऑर्डर में आप मूव करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आती है कि आपके ना 3 चीजें ऐसी हैं, मैं बताता हूं आपको। एक है नियोप्लेसिया, एक है एनवायरमेंटल पैथोलॉजी, और एक आ जाती है आपकी, जैसे यही 2 मेन है, या जेनेटिक्स कर लें, जेनेटिक्स भी एक ऐसे ही है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपने एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। वी हैव डन दैट एफर्ट फॉर यू, एंड वी हैव शेयर्ड फाइल्स फॉर नियोप्लेसिया एंड एनवायरमेंटल पैथोलॉजी ऑन आवर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। आपने सिर्फ वो फाइल कर लेनी है। आपको ना BRS पैथोलॉजी पढ़ने की जरूरत है नियोप्लेसिया एनवायरमेंटल पैथोलॉजी के लिए, ना आपको राबियाली पढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ वो फाइल करें, इवन FCPS मेट भी ना पढ़े बेशक, उसके लिए हमने वो सारी चीजें एक फाइल में इकट्ठी कर दी है। ठीक है, तो नियोप्लेसिया एनवायरमेंटल पैथोलॉजी आपने उस फाइल से पढ़ लेनी है। ठीक हो गया। और इम्यूनोलॉजी की जहां तक बात आती है, तो इम्यूनोलॉजी आपकी बात आ जाती है, तो इम्यूनोलॉजी में आपने BRS पैथोलॉजी, साथ इम्यूनो डेफिशिएंसी वाली जो चीज है, वो जो पार्ट है उसका इम्यूनो का, वो आप डायरेक्टली हमारी एक फाइल है जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर हुई है, वो करोगे। ठीक है, साथ आप टेबल्स करोगे फ्रॉम फर्स्ट एड, देन यू विल कंप्लीट इट फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, एंड देन राबिया। ठीक है, जनरल में तो क्लियर हो गई है सबको? अगर क्लियर हो गई है तो बताएं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। यस लिखने का क्लियर हो गई, अगर नहीं हुई तो पूछ लें, फिर मैं आगे मूव करूंगा। ठीक है, नहीं पैथोमा अगर आपने करना चाह रहे हो तो पैथोमा कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए रेकमेंड पैथोमा नहीं करता। पैथोमा बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद भी 4th ईयर में पढ़ी थी, स्टेप्स के दौरान भी पैथोमा पढ़ी थी, लेकिन मसला ये आता है कि जो लाइनें उठ के आती है ना CPSP में, वो आती है BRS पैथो से। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। फिर आती है आपके पास टेम्परेचर रेगुलेशन। अब टेम्परेचर रेगुलेशन सिर्फ आपने FCPS मेट से करनी है। फिर आती है आपके पास बायोकैम। बायोकैम में से
अब सच्ची जो बात है ना, ठीक है, फरवरी में आए हैं कुछ मुश्किल क्वेश्चंस, ठीक है, बायोकेम में से उन्होंने हाइपरलिपिडीमिया से भी पूछ लिया, उन्होंने स्फिंगोलिपिडोसिस से भी पूछ लिया है, उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस से भी पूछ लिया है थोड़ा बहुत, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इफ यू विल गिव टाइम टू दीज टॉपिक्स तो आपकी बाकी चीजें रह जाएंगी कमजोर। आप लोगों ने करना ये है, जो बनता भी है हक, कि आपने वाइटामिन वाला पोर्शन पढ़ लेना है फर्स्ट एड से अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन बाकी अगर टाइम है तो पढ़ लें, वरना जरूरत नहीं है। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ एफसीपीएस मेट करें और राबिया अली करें एंड यू विल बी गुड टू गो। बायोस्टैट भी इसी तरीके से एफसीपीएस मेट करें, राबिया अली करें, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। हिस्टो एंड लिम्फेटिक्स के लिए भी आप एफसीपीएस मेट करें, राबिया अली करें, इट वुड बी इनफ। जनरल एनाटमी के लिए भी एफसीपीएस मेट करें, राबिया अली करें, इनफ होगी, ठीक है। अब दो चीजें रह गई हैं माइनर्स में आपके पास, एक रह गई है फार्माकोलॉजी, एक रह गई है माइक्रोबायोलॉजी, एक रह गई है एम्ब्रियोलॉजी, तीन चीजें रह गई हैं, सॉरी, ठीक है। ये कैसे करनी है आपने? अब फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी अगर मैं देखूंगे आप अपेयर हो रहे हो फॉर एनेस्थीसिया, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट एड की फार्माकोलॉजी अच्छे तरीके से कर लो जो लिखी हुई है। लेकिन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर स्पेशलिटी, सो देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ चांस के मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अगर आपको आए 200 में से, तो दे वुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। अगर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल बहुत बुरा पेपर आ गया, आपको 12 क्वेश्चंस आ गए हैं, उन 12 में से भी देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ चांस के आपके जो फार्मा के क्वेश्चंस हैं वो 12 में से भी 7 से 8 क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट हो गए हैं या उन्हीं कॉन्सेप्ट से आए हैं जो पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी के लिए व्हाट वी सजेस्ट के आप एफ सी पी एस मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, ये एक किताब है, आप फार्माकोलॉजी उधर से कर लें या फिर एक पीडीएफ फाइल हमने सर्कुलेट की हुई है वहां से कर लें, उसी की पीडीएफ फाइल है जो उसमें पब्लिश्ड है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी आप एफ सी पी एस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 से कर लें, साथ आप कर लें ए एन एस की एक फाइल हमने शेयर की हुई है वो कर लें, उसके साथ आप कर लेंगे राबे अली से एमसीक्यूज, दैट वुड बी मोर देन इनफ फार्मा के लिए। इसी तरीके से माइक्रो के लिए आप एफ सी पी एस मेट फर्स्ट एडिशन करें, राबे अली के एमसीक्यूज करें एंड यू विल बी गुड टू गो। माइक्रो के बारे में भी इसी तरीके से इस दफा कुछ डिफरेंट चीजें आई हैं, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन से कुछ चीजें पूछ ली थी जो कि आउट ऑफ द ब्लू पूछ ली थी, पहले नहीं पूछते इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो उसमें जरा सा इशू क्रिएट हो गया था बच्चों को, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने उसी तरीके से तैयारी करनी है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और अल्लाह तवक्कल भी चलना है ऑब्वियसली। हाँ, अगर कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी तो ज़रूर करें फर्स्ट एड से पूरी, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा उसमें, ठीक है, बजाय कि आप गेन ज़्यादा करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अब आपकी जो फर्स्ट फेज था एनाटमी, एनाटमी में हेड एंड नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेल्विस किस तरीके से करनी है बता दी। ऑर्गन सिस्टम में सीवीएस, रेस्पो, जीआईटी, नेफ्रो, एंडो, रिप्रो, ब्लड, मस्कुलोस्केलेटल किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया। सीएनएस अलहदा कैप्लानाइड होगी वो बता दी। जनरल पैथो एम्ब्रियो सॉरी माइनर्स में जनरल पैथो, टेम्परेचर रेगुलेशन, बायोकेम, बायोस्टैट, फार्मा, माइक्रो हिस्टोलिम्फेटिक्स कैसे करनी है मैंने बता दी। एम्ब्रियो में क्या करना है आपने, एम्ब्रियो में यू विल स्टार्ट विद, इसमें भी अब ऐसे ही है, सच्ची जो बात है कि असूली तौर पे हाई यील्ड करनी चाहिए आपको, लेकिन रिपीट ही होती हैं चीजें। इफ you have basic concepts, you can directly switch over to FCPS mate Rabia Ali and you are good to go. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ वीक हैं तो फिर आप एम्ब्रियो हाई यील्ड से पढ़ लें तो इट इज गुड, ठीक है। ये हो गई क्लियर आपको अच्छे तरीके से। अब एक और चीज ये है आपका फेज वन। फेज वन में आपने थ्योरी की, अलॉन्ग विद दैट आपने एफसीपीएस मेट की, अलॉन्ग विद दैट आपने राबिया अली की।
इसी ऑर्डर में आपने चीजें फॉलो की है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि इसको आप अगर सिर्फ एनाटॉमी पूरी करते हैं, फिर आप माइनर्स करने लग जाते हैं, फिर आप ऑर्गन सिस्टम्स करने लग जाते हैं, फिर आपके लिए चीज मोनोटोनस हो जाएगी। मिक्स एंड मैच दीज थिंग्स। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं आपको मशवरा दूं, मशवरा इमानत होती है और वो सही देना चाहिए। ऑर्गन सिस्टम्स पे आपने 30 से 35 दिन से ऊपर नहीं लगाने। माइनर्स पे आपने 7 से 10 दिनों से ऊपर नहीं लगाने। अनाटमी पे आपने 20 दिनों से ऊपर नहीं लगाने। तो ये तकरीबन आपका पौने 2 महीनों में खत्म हो जाता है। 1 महीना आपके पास पीछे रह गया है। नाउ यू विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फेज, दैट इज फेज 2। फेज 2 में आप, फेज 2 भी सारी स्पेशलिटीज के लिए कॉमन है। आप जिस मर्जी स्पेशलिटी के लिए अपेयर हो रहे हैं, जो गोल्ड रिकॉल्स या गोल्डन फाइल्स जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली पास्ट पेपर्स हैं। लोगों को ये नहीं समझ आ रही होती जब वो FCPS पार्ट 1 की तैयारी शुरू करते हैं, अब ये क्या गोल्ड क्या है, डायमंड क्या है, ठीक है। गोल्डन फाइल्स या गोल्ड रिकॉल्स जो है वो बेसिकली पास्ट पेपर्स हैं जो आपके आए हुए हैं CPSP के, ठीक है। तो फेज 2 सबके लिए कॉमन है। फेज 2 में आप लोग जिस मर्जी स्पेशलिटी के लिए पेयर हो रहे हो, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो, गाइनियोब्स, ENT, आई, डेंटिस्ट्री इवन, ठीक है। नहीं, डेंटिस्ट्री के लिए बल्कि थोड़ा फर्क है, ठीक है। वो डॉक्टर जैमूर इंशाल्लाह एक अलग लाइव सेशन करेंगे, वो उसमें बताएंगे भी, ठीक है। तो फेज 2 में आपने क्या करना है कि आपने FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, ये एक किताब है। FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 सिंगल बुक है, ये पूरी करनी है आपने। एक बुक है FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, जिसमें सितंबर और नवंबर 2020 के पेपर्स है। और बुक फॉर्म में नहीं आई अभी, लेकिन एंड तक शायद आपकी, जब तक अगस्त का एग्जाम होना है तो बुक फॉर्म में आ भी जाए। अभी फरवरी के पेपर्स PDF फॉर्म में है। सो दे वुड बी FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 12, जिसमें फरवरी 2021 और मई 2021 के पेपर्स होंगे, ठीक है। ये आपने करने ही करने हैं। इसके लिए जो आपके FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 और 12 है, ये लेटेस्ट पास पेपर्स होंगे। तो अगर आप हमारा कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते, कोई मसला नहीं है। हम लोग जो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स होती है ना, उनके हम लोग पब्लिक डिस्कशंस करवाते हैं, हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वो आप, हम लोग करवाएंगे इंशाल्लाह अराउंड एंड ऑफ जून डिस्कशन शुरू करवा देंगे उसमें, ठीक है, ताकि आपकी ये तीनों अटेम्प्ट्स जो हैं वो पूरी उसमें करवा दी जाए, ठीक है। तो फेज 2 में आपकी जौन सी मर्जी स्पेशलिटी हो, आपने FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 एंड FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 12, जिसमें फरवरी और मई 2021 के पेपर्स होंगे, वो करने। एम आई क्लियर अबाउट द फेज 2? अगर क्लियर हूं तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं। अब चलते हैं जी फेज 3 की तरफ। अब फेज 3 जो है, इट इज स्पेशलिटी स्पेसिफिक प्रेपरेशन। मतलब कि स्पेशलिटी स्पेसिफिक आपकी कौन सी स्पेशलिटी, उस लिहाज से आपकी तैयारी होगी। बारी बारी शुरू करता हूँ। पहले मैं बात करूंगा मेडिसिन की। फेज 3 में आप मेडिसिन में 1 to 6 गोल्डन फाइल्स करेंगे, सिर्फ मेडिसिन के पेपर्स फ्रॉम वी रिकमेंड सलाउद्दीन कमाल भाई की बुक SK। सर्जरी के लिए आप 1 से 6, सर्जरी और रेडियोलॉजी दोनों के लिए आप 1 से 6 गोल्डन फाइल्स करेंगे फ्रॉम SK सर्जरी एंड रेडियोलॉजी बुक, ठीक है। सर्जरी, रेडियोलॉजी और मेडिसिन की तैयारी का मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं जी गायनी के बाद, गायनी की तरफ। गायनी के लिए फेज 3 में आप क्या करेंगे कि यू विल यूज दिस बुक, दैट इज FCPS मेट गायनी एंड ऑप्स, ठीक है। दिस इज द बुक FCPS मेट गायनी ऑप्स। आप ये वाली बुक यूज करेंगे। इसके अंदर ये बेसिकली 600 पेज की बुक है। इसके अंदर पास पेपर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, अल्लाह आपका भला करे, 2014 से 2020 तक जितने पेपर्स आज तक गायनी के हुए हैं
वो इस एक बुक में है। और इसमें जो डिस्कशन हमने बहुत इंटेंसिव की हुई है, वो डिस्कशन भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यू विल जस्ट राइट FCPS मेड गाइनी ऑब्स पेज नंबर एंड उसकी डिस्कशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ आप आगे मूव करेंगे तो एक आपने फेज 3 में गायनी के लिए ये वाली बुक करनी है, साथ आप करेंगे आसिम एंड शुएब फेज 3 में। बाकी फेजेस तो ऑब्वियसली वही है, फेज 1 और 2। ठीक है। अब मैंने आपको फेज 3 मेडिसिन का बता दिया है, सर्जरी का बता दिया है, रेडियोलॉजी का बता दिया है, गायनी ऑप्स का बता दिया है। एम आई क्लियर विद दिस? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो बताएं, फिर मैं आगे ENT और आई के फेज 3 की तरफ जाऊंगा। अगर क्लियर हो गया तो यस लिख दें, फिर मैं आगे चलता हूँ जी। ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ जी आई की तरफ। इम्यूनोलॉजी में रिपीट करता हूँ 1 मिनट। इम्यूनोलॉजी के लिए, सॉरी, आई के लिए, आई की बात कर रहा हूँ मैं। आई के लिए डॉक्टर अली ने एक डॉक्टर फरियाल के साथ मिलकर नोट्स बनाए हैं, जो मेड एग्जाम एक्सपर्ट एंड स्टडी मेट के नोट्स हैं। आपने वो करने होंगे फेज 3 में। आपने उसामा नोट्स एक बुक है वो करनी होगी। अलॉन्ग विद दैट आपने कुछ चीजें करनी है फ्रॉम स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी, वो भी शेयर्ड है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको बोल के मैं बता देता हूँ। स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी में से आप फेज 3 में करेंगे जी चैप्टर 6 आईबॉल, चैप्टर 5 ऑक्यूलर अपेंडेजेस, चैप्टर 3 ऑर्बिटल कैविटी, चैप्टर 8 मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल, चैप्टर 9 orbital blood vessels, chapter 13 the visual pathway and chapter 1 development of eye and ocular appendages। ये घबराए ना, ये आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी चीजें। ठीक है। और साथ आप करेंगे जॉन फेरिस ऑफ्थेल्मोलॉजी, उसमें आपने फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी पोर्शन करना है फ्रॉम जॉन फेरिस। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक और बुक है नूर बख्त, वहां से भी आप कर सकते हैं जो फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन है। ठीक है। ये है जी आपका फेज 3 फॉर आई। क्लियर? ये आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। अब मैं चलता हूं जी फेज 3 फॉर ENT। फेज 3 फॉर ENT में डॉक्टर मोविस ने ढिंगरा से चैप्टर्स बताए हुए हैं कि आपने कौन कौन से करने हैं। ठीक है। आपने वो चैप्टर्स कर लेने हैं, अलहदा एक पूरी फाइल बनी हुई है, वो आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। और इसमें आपने फेज 3 में साथ ऐड करना है आपकी ENT ऑल इन वन बुक आ जाती है, और ढेंगरा की ENT की MCQ बुक आती है। ये दो चीजें ऐड अप कर लेनी है। एम आई क्लियर ENT के बारे में? अब साइकेट्री की बात करते हैं अगर, तो साइकेट्री की तैयारी बिल्कुल मेडिसिन वाली है, कोई फर्क नहीं है साइकेट्री की तैयारी में। मतलब कि फेज 3 में आपने एग्जैक्टली वही मेडिसिन वाली तैयारी करनी है, जिसमें आप SK 1 to 6 करेंगे, मेडिसिन वाले पेपर्स फ्रॉम SK बुक। ENT वाला आपने मुझे बताना, मैं रीशेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये रिटर्न फॉर्म आपको इंशाल्लाह परसों तक कोशिश करूंगा मैं भेज दूं सबकी। ठीक है। ये क्लियर हो गई आपको फेज 3? अब चलते हैं जी हम फेज 4 की तरफ। फेज 4 जो है वो है आपका रिवीजन का। रिवीजन में आपने जो फेज 3 में चीजें पढ़ी हैं वो अच्छे तरीके से करनी है, जो फेज 2 में चीजें पढ़ी हैं वो अच्छे तरीके से पढ़नी है, और आपकी FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, ये 3 चीजें मस्ट है। ये रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी तैयारी का, तो ये आपने नहीं छोड़नी। एम आई क्लियर विद दिस? एनेस्थीसिया के लिए ना राली नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एनेस्थीसिया के ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ मेंटर विद अस राइट नाउ। हम कोशिश करते हैं कि एनेस्थीसिया के लिए कोई लाइव सेशन करवा लें। फेज 4 इज रिवीजन। रिवीजन में जो फेज 3 में आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, अलॉन्ग विद दैट जो फेज 2 में चीजें पढ़ी हुई हैं,
और फेज 1 में से जो आपने FCPS मेट फर्स्ट एडिशन पढ़ी हुई है, ये 3 चीजें मस्ट है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट रीड होती है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी फर्स्ट रीड जो होती है। अब फर्स्ट रीड में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आई थिंक वी हैव डॉक्टर हमादियास विद अस। डॉक्टर हमादियास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यू जी कैन टेक मैं ओवर। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि डॉक्टर अहमद हसन ने इंट्रोडक्शन करवा दिया था, तो मैं जस्ट ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। आई एम डॉक्टर हमाद अयाज एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंटोर्स ऑफ दिस मेड एग्जाम एक्सपर्ट एंड द स्टडी मेड स्टडी सीरीज। और हमने ये प्रोग्राम अपना 1 साल पहले अप्रैल में ही स्टार्ट किया था, और रमज़ान ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1200 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो जैसा कि डॉक्टर अहमद हसन ने आपको डिफरेंट फेजेस बताए हैं पढ़ने के, कि हमने किस तरह से पढ़ना है, फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 क्या है, फेज़ 3 क्या है। तो हम ये सारा जो फेजेस है ये हमारे सेल्फ डिवाइस्ड है, ये हमारा अपना प्लान है। आप अपना प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। बस पता आपको ये होना चाहिए कि आपने टोटल जिस स्पेशलिटी में आप पार्ट 1 देने जा रहे हैं, आपको उसमें करना क्या है और कितने टाइम में करना है। तो ये सारी बात तो डिस्कस हो चुकी है कि आपने क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और बुक्स कौन सी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो बातें डिस्कस होने वाली रहती हैं वो ये हैं कि कितना टाइम पढ़ना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, दूसरा जॉब के साथ इन चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करना है, तीसरा ये चीज़ कि हाउस जॉब में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपको तैयारी हाउस जॉब में स्टार्ट कर देनी चाहिए डिपेंडिंग आप कौन से मंथ में हैं हाउस जॉब के, या आपको वेट करना चाहिए। ठीक है। मेरा ख्याल है हमारे साथ ना सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने हाउस जॉब जो अभी कर रहे हैं और वो पार्ट 1 के लिए सोच रहे हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी हाउस जॉब कर चुके हैं और पार्ट 1 जो है वो देना चाहते हैं या दे चुके हैं। ठीक है। तो मैं दोनों के लिए ये डिस्कस करूंगा। तो जब आप हाउस जॉब में है ना, तो हाउस जॉब में आपकी अप्रोच सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि आप अपनी हाउस जॉब को अच्छी तरह से करें। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं अभी से पार्ट 1 के लिए जो है वो टेंशन लेना शुरू कर दूं और मैंने पार्ट 1 देना है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपकी हाउस जॉब अफेक्ट ना हो, आपकी हाउस जॉब ठीक जा रही है। ठीक है। दूसरा, हाउस जॉब को ये आपको रखना है कि अगर आपने कोई ऐसी रोटेशन ली है कि जिसमें आपके पास टाइम है, जैसे कि ENT, जैसे कि आई, ठीक है, और डर्मा, अगर कोई ऐसी रोटेशन है जिसमें आपके पास टाइम है, तब आप स्टार्ट कर दें पार्ट 1 के लिए पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे वेले बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो मेडिसिन सर्जरी जो कर रहे हैं, साथ जो ऐसी रोटेशन कर रहे हैं जो हेक्टिक है, पीड्स, गायनी एटसेट्रा एटसेट्रा, उन लोगों को अभी से पार्ट 1 के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि उन लोगों को अभी से पार्ट 1 के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी जो है वो स्टार्ट नहीं की, और जिनकी रोटेशन जो है वो अभी तक नहीं ऐसी हेक्टिक रोटेशन, और उनके पास टाइम है, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पढ़ना है हाउस जॉब में। ठीक है। तो हाउस जॉब में आपके पास दो चीज़ें, अगर तो आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअली बेस्ड पर्सन हैं और आपका ये है कि आपने हर चीज़ स्क्रैच से करनी है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आउट ऑफ 9 और 10 ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फर्स्ट एड, आप 9 और 10 ऑर्गन सिस्टम्स में से 4 या 5 ऑर्गन सिस्टम अपनी इस हाउस जॉब की ठंडी रोटेशन में कंप्लीट कर लें। ठीक है। अब वो कैसे कर लें, आपने क्या करना है, FCPS मेट जो वॉल्यूम 1 है ना, वो अभी से खरीद लें और फर्स्ट एड खरीद लें। ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे कि फर्ज करें आपने फर्स्ट एड से स्टार्ट किया है CVS का पोर्शन, आप अपनी FCPS मेट वॉल्यूम 1 उठाएं और उसमें CVS का जितना भी पोर्शन है जस्ट उसको एक बार रीड कर लें। जब आप उसको एक बार रीड कर लेंगे और उसके बाद आप फर्स्ट एड उठाएंगे पढ़ने के लिए, आपको ये पता होगा कि आपने फर्स्ट एड में से क्या चीज़ अच्छी तरह से करनी है और क्या चीज़ जो है वो गुजारनी है। ठीक है। तो FCPS मेट वॉल्यूम 1 जो है, बेसिकली ये जितने भी पास्ट पेपर्स आ चुके हैं उनमें से सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सारे इम्पोर्टेंट MCQs उठाकर
सिस्टम वाइज डिवाइड कर दिए गए हैं, CVS, CNS और व्हाटएवर जितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो इसको करने का मकसद और इसको करने का तरीका ये है कि आपको ये पता हो कि आपने फर्स्ट एड से क्या चीज सही से करनी है और क्या चीज जो है वो गुजारनी है, ठीक है। पार्ट वन का एक असूल ये है कि आपने कॉन्सेप्ट में इतना नहीं घुसना कि आप हर चीज पे इतना सोचने लग जाएं कि आपके एक आंसर की जगह 4 आंसर्स बन जाएं, क्योंकि FCPS पार्ट वन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके जितने ऑप्शन होते हैं वो अमूमी तौर पर 2 से 3 करेक्ट होते हैं और आपको उसमें से बेस्ट चूज करना होता है। तो अगर तो आप इस चीज में आ जाएंगे कि आपने ये भी सही है ये भी सही है, तो आप गलत ही करके आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट पार्ट वन एग्जाम इज कि कॉन्सेप्ट उतना रखना है जितना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। वो जब आप राबिया अली के MCQ सॉल्व करने के साथ साथ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना कॉन्सेप्ट पूछा हुआ, ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि हाउस जॉब वालों को कब पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो लोग जो अभी हाउस जॉब में नहीं है और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है। तो देखें, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि जी आप अपने पार्ट वन के एग्जाम को कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप 3 मंथ्स दे रहे हैं तो फिर तो आपका मतलब बहुत एक अच्छा पैकेज बन जाता है कि आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं पार्ट वन के एग्जाम की, जिसको हम कहते हैं फुल फ्लेज तैयारी। वो लोग जो 2 मंथ्स दे रहे हैं, चलें वो भी अगर दिन में ज्यादा टाइम दे तो कर सकते हैं। 2 मंथ से कम जो टाइम है ना, वो फिर रिस्क पे है। वो फिर आप जैसे कहते हैं ना, लक पे है, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, ठीक है। तो मिनिमम टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्ट वन एग्जाम इज 2 to 2.5 months और 3 मंथ्स इज द ऑप्टिमम टाइम, ठीक है। 3 मंथ्स आपको देने पड़ते हैं ना करते हुए भी। और इन अगर आप 3 मंथ्स दे रहे हैं तो इसमें आपको 4 to 6 आवर्स पढ़ना है। अगर आप 2 मंथ्स दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। और तैयारी जो है 3 मंथ्स जो दे रहे हैं ना, आपके लिए इस तरह से हो जाता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप अगर 1 से 2 घंटे जॉब में निकाल लेते हैं पढ़ने के, तो आप घर आकर टोटल 2 से 3 घंटे जो है सिर्फ बैठ के पढ़। जो जॉब में टाइम नहीं निकाल सकते फिर उनको घर आकर कम से कम 4 से 6 घंटे जो है वो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो 20 कह रहा हूँ 2 महीने का प्लान फॉलो कर रहे हैं, वो आप टोटल जो है ना 8 घंटे आपको घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि मेडिकल या राबिया अली में से कौन सी करनी है, तो वी ओनली प्रेफर राबिया अली, ठीक है। मेडिकल इज स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइज्ड कि आपने मेडिकल चूज करनी है। राबिया अली ओनली एंड ओनली राबिया अली, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने भी राबिया अली से ही पढ़ के दिया है, अभी तक राबिया अली के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में एग्जैक्टली एज इट इज रिपीट होते हैं, ठीक है। फेज वन पूछा हुआ है कि फेज वन क्या है, जनरल एनाटॉमी और ऑर्गन सिस्टम का। तो फेज वन ये है कि आपने इसमें जनरल प्रेप करनी है। जनरल प्रेप से मुराद ये कि आपने फर्स्ट एड के ऑर्गन सिस्टम्स खत्म करने हैं, आपने एनाटॉमी जो है वो आपकी जनरल एनाटॉमी जो है वो करनी है। फर्स्ट एड के ऑर्गन सिस्टम्स फर्स्ट एड में हैं। सबसे पहले आप FCPS मेट करेंगे, FCPS मेट से वो ऑर्गन सिस्टम करने के बाद आप फर्स्ट एड से करेंगे, फर्स्ट एड से करने के बाद आप राबिया अली के MCQ सॉल्व करेंगे उस टॉपिक के, ठीक है। दिस इज द फेज वन फॉर एनाटॉमी। एनाटॉमी में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चीजें करने वाली हैं जो छोड़ने वाली हैं, तो वेसल्स, उनकी ब्रांचेस, उनकी डिविजन्स, ठीक है, और उनकी सप्लाई। इसी तरह नर्व्स, उनकी ब्रांचेस और उनकी सप्लाई, ठीक है। इसी तरह से मसल्स में ना आपको जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जैसे फर्ज करें अगर आप थाई के मसल्स की बात कर रहे हैं, तो एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है, एक मीडियल कंपार्टमेंट है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। तो आपको उन कंपार्टमेंट्स की नर्व सप्लाई पता हो, आपको उनके कंपार्टमेंट्स के मसल के एक्शन का पता हो, ठीक है। तो आपको मोटे मोटे मसल्स जो है ना, लेटिसियस डॉर्सी, पेक्ट मेजर, पेक्ट माइनर, इनकी नर्व सप्लाई, इनकी ब्लड सप्लाई, इनकी जो है वो मसल एक्शन क्या है वो पता हो। अब जो छोटे छोटे मसल्स है ना, पिरामिडालिस हो गया, जो इन मसल्स की आपको जरूरी नहीं है कि नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पता हो। मेजर क्वेश्चन एनाटॉमी में पूछा जाता है, क्या सारों की ओरिजिन इंसर्शन करनी है, क्या सारों की नर्व सप्लाई करनी है? नहीं, सबकी नहीं करनी है। सिर्फ मेजर मसल्स की आपको नर्व सप्लाई पता हो, मेजर मसल्स का आपको एक्शन पता हो, और मेजर मसल का ही आपको ये पता हो कि इनका ओरिजिन इंसर्शन क्या है। सारी चीजों की आपने नहीं करनी है तैयारी, ठीक हो गया। वेसल्स जितनी भी हैं हर जगह की आपको आनी चाहिए। नर्व्स जितनी भी हैं, कोर्स नहीं पूछते वेसल्स का, ब्रांचेस पूछते हैं, सप्लाई पूछते हैं,
ठीक है। इसी तरह से नर्व्स का भी कोर्स नहीं पूछते, ब्रांचेस और सप्लाई पूछते हैं, तो आपको ये एनाटॉमी में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फेज 3 एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया के लिए राली नोट्स होते हैं, वो पूछे। ठीक है। तो टोटल जो इस डिस्कशन का मकसद था वो ये था कि ओरिएंट ये किया जाए कि हाउस ऑफिसर्स ने क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर अहमद हसन ने बताया कि तैयारी किन बुक से करनी है और किन चीज़ों से करनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने हाउस जॉब में अपनी हाउस जॉब अच्छे से करनी है और पार्ट 1 की टेंशन नहीं लेनी है। पार्ट 1 की टेंशन आपको हाउस जॉब खत्म करने के बाद होनी चाहिए। अगर अच्छी रोटेशन मिल गई है या आपने ले लिया है तो तैयारी स्टार्ट करें। तैयारी में क्या करें? फर्स्ट एड करें। ठीक है। और अगर तो रोटेशन नहीं मिल रही है तो चिल और रिलैक्स होकर सिर्फ अपनी हाउस जॉब करें। हमने हाउस जॉब में एक लफ्ज नहीं पढ़ा था पार्ट 1 के लिए और ना ही जरूरत है पढ़ने की। ठीक है। लेकिन जिनके पास टाइम है वो जरूर पढ़े। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब मैं साथ साथ अपने कोर्स का बताता चले। तो ये जो हमारा कोर्स है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स में इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं कि इस कोर्स में जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर दी जाती है जिसमें आपके 3 मंथ्स का स्केड्यूल जो है वो मौजूद होता है कि आपने इस कोर्स को किस दिन में कौन सा सिस्टम करना है। ठीक है। जैसे फर्स्ट एड के जितने सिस्टम्स हैं वो हमने डेज पे डिवाइड कर दिए। 5 days फॉर सीवीएस, 3 days फॉर रेस्पिरेटरी, 4 days फॉर मस्कुलोस्केलेटल, 7 days फॉर न्यूरो। ठीक है। तो वो सारा आपके पास पहले से 3 मंथ का स्केड्यूल आ जाता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दिया जाता है, आपको फेसबुक ग्रुप पे ऐड कर दिया जाता है और जो हमारी वेबसाइट है मेड एग्जाम एक्सपर्ट की, उस पे आपका अकाउंट बनवा दिया जाता है। वंस यू लॉग इन इनटू दैट अकाउंट, आपको जैसे जैसे हमारा जो कोर्स का स्केड्यूल है जो कि आपको ईमेल में प्रोवाइड किया गया था, जैसे जैसे वो स्केड्यूल प्रोग्रेस करता है, पहले सीवीएस था तो आपके पास आपके अकाउंट पे सीवीएस के लेक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है। ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे उर्दू में बनाए गए हैं एंड दीज आर द कंपाइलेशन ऑफ द बीआरएस, फर्स्ट एड और जो जनरल एनाटमी है। इवन राबिया अली और एफसीपीएस मेट वॉल्यूम 1 के जो एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको अलॉन्ग विद जिसका स्केड्यूल जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देन जितने भी उनकी डिस्कशंस जो हो रही हैं लेक्चर्स की, वो साथ साथ जो है वो टेलीग्राम पे उनकी डिस्कशंस होंगी और फेसबुक पे जब आपका फेज 2 आएगा तो साथ ही उनकी एमसीक्यूज की डिस्कशन जो है वो उस पे फेसबुक पे स्टार्ट हो जाएगी, जितने भी आपकी गोल्डन फाइल्स हैं। ठीक है। और जितने भी पास्ट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस हो जाते हैं। वन थिंग आई वांट कि आप सबको पता हो कि ये लेक्चर्स किन लोगों के लिए ज़रूरी हैं। ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जिनकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग अपने एमबीबीएस के ईयर्स में अच्छी नहीं थी। ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो कि काफ़ी टाइम से अपने स्टडीज़ के जो फील्ड है उससे दूर थे, वो जॉब्स कर रहे थे या वो ऐसे एरिया में थे जिनके बच्चे थे जिनकी शादी हो चुकी थी और वो नहीं कर सके अपनी परस्यू आगे पढ़ाई। ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं। ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए ज़रूरी है हु आर वेरी मच वरिड के हमें नहीं समझ आ रहा कि हमने कैसे बुक से पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ करनी है। ठीक है। सो दीज लेक्चर्स आर फॉर यू। जो लोग ऑलरेडी अपनी पढ़ाई में अच्छे हैं और उनको कोई इशू नहीं है और फर्स्ट एड उन्होंने पहले से की हुई है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फॉलो करें। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर अहमद हसन ने बताया कि मशवरा एक अमानत है और इसको बड़ी ही ईमानदारी से देना चाहिए। सो नॉट फॉर द पब्लिसिटी ऑफ आवर कोर्स कि हम ये कहेंगे कि जी ईच एंड एवरी पर्सन शुड ज्वाइन दिस कोर्स एंड ईच एंड एवरी वन शुड डू दिस। नो, these are not for each and everyone. These are only for those who are very much worried about their part 1 exam that they cannot do it independently. If you need the help, we are here to help. ठीक है। These are for those who are in the job commitments and they are not getting enough time to pick what things to do from the book and what not. ठीक है। These lectures will tell you कि ये कितनी चीजें किस अमाउंट में करनी है। एंड बिलीव मी, जस्ट आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर्स आप हमारे स्टडी मेट के पेज पे जो है वो जाकर जो हमने डेमो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार उन लेक्चर्स को सुने। दीज आर ओनली ऑफ 10 to 15 मिनट्स और उसके बाद आप फर्स्ट एड से वो टॉपिक खोलें एंड देन जस्ट रीड द लाइंस। दूसरी बार आपको वो लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर्स आपकी वो चीजें ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। इवन हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चंक ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, चंक ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बगैर कोई बुक किए, सिर्फ उनके पास जब टाइम कम रह गया था उन्होंने वो लेक्चर्स देके पार्ट 1 का एग्जाम अटेम्प्ट किया एंड दे हैव पास दैट एग्जाम।
वी डू नॉट रिकमेंड दिस इज अटरली रॉन्ग थिंग कि आप सिर्फ लेक्चर्स देख के कर रहे हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड तो बुक्स हैं, ठीक है, लेक्चर्स हमने इन्हीं बुक से बनाए, बट जब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपके पास आप नहीं पढ़ सके और आपके पास टाइम कम रह गया, तो कई स्टूडेंट्स ने ऐसे भी एग्जाम जो है वो पास किया कि वो सिर्फ लेक्चर्स सुन के जो है वो चलेंगे। सो आप इन लेक्चर्स की जो डेमो सेशंस हैं वो आप जाके स्टडीमेट के पेज पे देखें, एंड देन डिसाइड इफ यू नीड दिस कोर्स और नॉट, ठीक है। बाकी जो जो क्वेरीज हैं आपकी वो साथ साथ हम लाइव सेशंस जो है आप करते रहेंगे और साथ साथ डिस्कस जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। द मेन थिंग इज कि आपने ये जो है डिस्कशन है इसका आपने कब से तैयारी स्टार्ट करनी है और कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, जो ये लेक्चर्स हैं ये आपके पास 24/7 हर वक्त अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए हैं। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और ये आपके पास मौजूद होते हैं, और ये जितने भी क्या कहते हैं मेंटोर्स हैं हमारे पास जो टेलीग्राम में मौजूद हैं, जिस वक्त आपको कोई लेक्चर में क्वेरी हो रही है, कोई एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा, कोई बुक से कोई आपको नहीं समझ आ रहा, आप वो टोटल टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं और मेंटोर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप वो आपको आंसर करते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है। इस कोर्स की डिटेल्स जो है वो आपको अभी जो है वो शेयर कर देते हैं, साथ ही मैसेज में भी शेयर कर देते हैं, स्टडीमेट के पेज पे भी वो शेयर अभी आपको इधर भी भेज देते हैं, जूम पे भी, ठीक है। सो the thing is, this is not just a paid promotion course, this is for the help of the students जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा कि how to clear the part 1 exam। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 अटेम्प्ट्स के बाद ये कोर्स ज्वाइन किया है एंड देन दे हैव क्लियर्ड इट, ठीक है। सो दिस इज नॉट जस्ट द पेड प्रमोशन वर्क, दिस इज अबाउट द help as well, the help of those students who are in need and those who are not able to do it by themselves, ठीक है। so this is just for them, we launched it because हमारे होते हुए ऐसा कोई कोर्स नहीं था, हमारे होते हुए कोई हेल्प करने वाला नहीं था, ठीक है। तो हमारे जो फेब एग्जाम जो हमारी फेब एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, द जो सीपीएसपी की पासिंग परसेंटेज थी दैट वाज नियर 30%, ठीक है। और हमारे जितने स्टूडेंट्स थे our passing percentage was 75%, ठीक है। we can vouch for that, we can also provide the stats for that। तो हमारा जो फेब सेशन का जो रिजल्ट आया है दैट इज आवर बेस्ट रिजल्ट एंड दैट इज 75% प्लस। पहले हमारा रिजल्ट 65% आते थे, लेकिन इस बार 75% रिजल्ट है। सो दैट इज बिकॉज वी आर ऑल्सो चेंजिंग आवर लेक्चर्स, वी आर ऑल्सो चेंजिंग द एमसीक्यूज पैटर्न, जैसे जैसे कि सीपीएसपी चेंज कर रही है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप जैसे जैसे सीपीएसपी के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आप साथ साथ अपने आप को भी इवॉल्व करें, ठीक है। तो अब ना सिर्फ सीपीएसपी में रटा बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड अबाउट दैट एज वेल कि अब सिर्फ पास्ट एमसीक्यूज करके जो है वो एग्जाम पास नहीं होगा, साथ साथ कॉन्सेप्ट होना और बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। पहले ये होता था कि आप सिर्फ पास्ट एमसीक्यूज करके चले जाएं, और सीनियर्स भी यही गाइड करते थे कि पास्ट एमसीक्यूज करके चले जाएं और आपका एग्जाम पास हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द थिंग नाउ, दैट इज द थिंग ऑफ द पास्ट। अब साथ साथ एमसीक्यूज भी चेंज हो रहे हैं एंड साथ साथ जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें जो है वो ऐड हुई जा रही है, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला वील बी इन टच एंड वील बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू। दिस वाज अबाउट आवर कोर्स। हमारा कोर्स जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फेसबुक पेज पे हमारे जो है वो द स्टडी मेट, मैं इधर नाम शेयर कर देता हूँ, फेसबुक पेज का आप सर्च कर लें, द स्टडी मेट डॉक्टर अहमद हसन के नाम से ये पेज है, ठीक है। इस नाम से ये पेज है, आप इसको सर्च करके आप इस पे सारा हमारे कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। इस पे जो लिंक है आप उस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कांटेक्ट करें, आप यहाँ पर अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं, वील कांटेक्ट यू बाय आवरसेल्व्स, और आप जो है वो फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ के जो आपकी क्वेरीज हैं इस कोर्स के बारे में और जो आपके इश्यूज हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइव सेशन। आई होप कि आप लोगों ने जितना आप लोगों की क्वेरीज थी, जितने आप लोगों के प्रॉब्लम्स थे, वो आप लोगों ने पूछ लिए होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। सो विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी क्वेरीज को एड्रेस किया जाए।
So, with this parting note, I'll invite Dr. Ahmed Hassan to please take over and say a few parting words. थैंक यू डॉक्टर हमाद। अच्छा, जैसे डॉक्टर हमाद ने आपको एक्सप्लेन कर दी है पूरी डिटेल में जो हमारे कोर्स के फीचर्स हैं और किस तरीके से हम लोग ये सब कुछ कंडक्ट करवाते हैं, इसमें वही वाली बात आती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देयर इज़ अ सर्टेन बैलेंस दैट यू शुड मेंटेन बिटवीन रूट लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। जो अभी फरवरी का पेपर हुआ है उसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत ज़्यादा है, और इसका मतलब ये है कि CPSP इज इवॉल्विंग, इज चेंजिंग द क्वेश्चंस। तो उसमें जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स पे फोकस किया हुआ था, दे वरंट एबल टू क्लियर इट। लेकिन जिन लोगों ने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे, उनकी बेसिक्स बनी हुई थी, दे वर एबल टू क्लियर इट, और उनको क्वेश्चंस भी कोई इतने आउट ऑफ द ब्लू नहीं लगे और वो डम फाउंड नहीं हुए वहां पे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि यू शुड हैव a specific balance between the concepts and the root learning. Moreover, the registrations for the August attempt course are open. We have the whole 3-month session, 3-month course that is starting from 1st of May, inshallah, and we all welcome you guys. There is no specific last date of registration, but once the seats are filled, the registration will end and close. So we will recommend that if you want to join this course, join it as early as possible. अगर आपकी कोई queries, कोई questions हैं, you can just raise your hand and ask us the questions, or we will be happy to help you out. कोई questions हैं तो आप hand raise करें Zoom पे और मैं आपको unmute कर देता हूँ, आप question पूछ सकते हैं। ये जो सेशन है ये बेसिकली आपके पास रहेगा ऑन द स्टडी मेट्स फेसबुक पेज। ये रिकॉर्डेड वर्जन उधर पड़ा होगा। वंस द सेशन एंड्स तो आप रिकॉर्डेड वर्जन उधर से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया, कैन वी हैव डेमो क्लास? तो डेमो क्लास जो है वो इस जो स्टडी मेट का फेसबुक पेज है ना, उसकी वीडियोस में आप जाएंगे ना तो वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से इजीली जो है ना वो देख सकते हैं लेक्चर्स जिस तरीके के हमारे बने हुए हैं। हमारे सारे लेक्चर्स जो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। पहले फेज में हम लोग कॉन्सेप्ट डिलीवरी करते हैं, दूसरे फेज में बुक रीड करवाते हैं, और तीसरे फेज में 1 लाइनर्स की फॉर्म में MCQs डिस्कस होते हैं। The lectures are available 24/7. There are no specific timings, and even the discussions जो है वो 24/7 चल रही होती हैं। हाँ, ऑब्वियसली रात को तकरीबन 12 से सुबह 8 बजे तक वी आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो उस टाइम पे भी, और हम सुबह उठ के आंसर दे देते हैं। लेकिन रमज़ान में ऑब्वियसली सहरी का होता है, सारा का एहतमाम होता है, तो उस दौरान हम लोग रमज़ान में तो सहरी तक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, I hope this session was helpful for you guys, and we will be conducting more sessions like these. If you have any queries, you are more than welcome to post and ask about those queries, and please do let us know about your feedback on Med Exam Expert Pakistan's page and StudyMate's Facebook page as well. We will be glad that you have left a feedback for us. Thank you so much for your time. We hope this has been helpful. This is Dr. Ahmed Hassan signing off. Jazakallahu khair. Allah Hafiz.